Back to all of you, and let's start with our new class. And we were in the previous class we were studying the chapter number 2, role of the government in health. Today we will continue with our class, as we have already learned with the basic introduction, and we have also seen the what is mean by the health, and what is the situations which are in India, what are the situations of health in India. And today we will start from here. Let's start the chapter. India has a large number of doctors. Actually, in our country, India have a very large number of doctors, clinics, and hospitals. As we all know that in India there are very large number of doctors, and very good doctors are there present in India, and very large number of clinics also are there, and hospitals also are there. Clinic, you all know that, a small form of hospital. You can basic treatment you can take from clinic, and if you go for the operations and all these things that you have to do in the hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. Country in India, the experience and knowledge in running a public healthcare system is not very good. This is a system of hospitals and health centers run by the government. Some hospitals are run by the government and some hospitals are run by the private sectors. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. What is the government role in the hospitals is that they have to cover all the populations which are spread village to village in our country. We all know that Adaksar is also a village, Chaundia is also a village, Dolpra is also a village, and these small hospitals are also situated in these types of villages also. These are established by the Indian government only. Like that, these I am talking about the in our villages only. But the question is that for a large population, Indian government is providing facility for all the Indian villages. You just imagine that for your like your villages, there are lakhs of villages that are present in India, and all the villages they have to cover all. Indian government have to cover all the villages for the hospital. It has the ability to look after the health of a large section of its population. They have to look for all the population. They can't do that. They just providing the some cities hospital, and they are not focusing on the village. That should be not like that. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science. There has been a phenomenal advancement in medical science. इसका मतलब ये है कि जो आपकी मेडिकल साइंस है उसने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट आर देयर इन द मेडिकल साइंस, वेयर बाय मैनी न्यूज टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री. जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है. मतलब कि पहले जो हमारे देखो, पहले भारत में क्या चलता था, पहले नाड़ी वेद चलता था. हाथ देखते थे, हाथ चेक करते थे, उससे पता चला लगा लेते थे. अब वैसा नहीं होता है. अब है ना, पूरा स्कैनिंग होती है, बॉडी स्कैनिंग होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, स्टमक का अलग होता है, पैर का अलग होता है, गले का अलग होता है, ब्लड टेस्टिंग अलग होती है, यूरिन टेस्टिंग अलग होती है. हर एक चीज़ की टेस्ट अलग होता है. ठीक है. हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़. अभी सेकंड सिचुएशन, सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन यही होती है कि हमारे जो देश में गरीब हैं उनके लिए हेल्थ गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ, उनकी हेल्थ के लिए क्या कर रही है और उनकी सिचुएशन कैसी है कंट्री के अंदर. लेट्स डिस्कस दैट. विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल. अभी देखो, मेन पॉइंट तुम्हारा ये है कि इन सब के बावजूद भी देखो, जो आपका मेन पॉइंट है वो क्या है, वो ये है, इन सब के बावजूद भी अबाउ पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर पीपल. मतलब कि इन सब के बावजूद भी इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है. वी हैव लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स, वी हैव सफिशेंट डॉक्टर्स, वी हैव एफिशिएंट डॉक्टर्स, वी हैव कैपेबल डॉक्टर्स, वी हैव हॉस्पिटल्स लाइक एम्स. इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है हमारे पास में, इतने ज़बरदस्त क्लिनिक्स हैं हमारे पास में. उसके बावजूद जो गरीब लोग होते हैं उनको अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है. इन सब का कारण क्या है? दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़
contrary to what we would expect। इसका मतलब ये होता है कि ये एक पैराडॉक्स है कि मतलब ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है हमारे लिए कि इतनी सब कुछ बावजूद होने के बावजूद ये हमने उम्मीद नहीं की थी। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे कंट्री के पास में पैसा है, नॉलेज है एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। और पीपल लोग, अनुभवी लोग हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको बाहर बुलाया जाता है ऑपरेशन करवाने के लिए, ठीक है, जिनको बाहर भेजा जाता है और बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बावजूद जो हमारे कंट्री में जो गरीब रहते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि इनके क्या कारण होते हैं। अभी आप लोग को एक इन द राइट हैंड साइड वन पिक्चर इज गिवन टू यू दैट शोन दैट पेशेंट्स यूजुअली बेयर टू वेट इन लॉन्ग क्यूज फॉर पब्लिक हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन। अभी देखो इस तरह से बेचारे लाइन लगाते हैं। ये इतनी बुरी हालत है सरकारी अस्पतालों की, जाने नहीं चाहता है कोई। अगर अच्छा ट्रीटमेंट करवाना तो प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना है? पैसे भी नहीं लगते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट में जाता नहीं है, प्राइवेट में पैसे देके इलाज करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो वर्किंग कंडीशंस होती है, जो उनकी फैसिलिटीज़ होती है, वो बहुत ही ख़राब होती है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। अब देखो एक स्टोरी की मदद से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हकीम शेख वाज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, ठीक है। ये एक समिति है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं ना, जो खेती के जो मजदूर होते हैं, उनकी एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक मेंबर है, उसका एक मजदूर है हकीम शेख, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल, कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल के अंदर है। वन इवनिंग इन 1992, 1992 के एक दिन, एक शाम, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन। वो गलती से, वो एक्सीडेंटली वो चलती ट्रेन से गिर जाता है एंड सफर्ड हेड इंजरी, और उसको सिर की इंजरी हो जाती है, उसको हेड इंजरी हो जाती है। ही वॉज इन ए वेरी सीरियस कंडीशन, और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था। सीधी सी जाहिर सी बात है, किसी के दिमाग में लगेगी, चोट लगेगी तो वो सीरियस ही होगी। एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उसको बहुत ज़्यादा इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था। ही वॉज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहले वो एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इन कलकत्ता के अंदर। बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, लेकिन वो उसको एडमिट करने से मना कर देते हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास में खाली बेड ही नहीं था। बोलो, सोने के लिए उनके पास में पेशेंट को सुलाने के लिए खाली बेड नहीं था, इसलिए वो उसको एडमिट नहीं करते हैं। एक तो वो सीरियस हो रखा है, ठीक है, उसके बावजूद ये हालत है। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। और दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो दूसरे हॉस्पिटल में क्या आती है प्रॉब्लम कि वहाँ पे है ना, जो उसका जो दिमाग का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनके पास में दवाइयाँ नहीं है, चेक करने के लिए मशीनें नहीं है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट, और इसी तरह वो 14 घंटे तक क्रिटिकल स्टेज में पड़ा रहा। एंड वाज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और उसको 8 अलग अलग हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चक्कर ही लगवाते रहे उसको। वो बेचारा सर पकड़ के बैठा है, उसकी हालत ख़राब हो रखी है और उसको चक्कर लगवा रहे हैं। बट नन ऑफ देम एडमिटेड, लेकिन किसी ने उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसको आखिरकार उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया। वेर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, और उसने वो ट्रीटमेंट रिसीव किया। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उसको इतने पैसे लगे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स, और वो गुस्सा आ रखा था उसको, बहुत अपसेट था, उसका दिमाग ख़राब हो रखा था कि यार ये कैसे हॉस्पिटल है, कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। दैट रिफ्यूज़ टू एडमिट है, और उन्होंने उसको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। हकीम शेख एंड PBKMS फिल्ड ए केस इन द कोर्ट, और जो वो समिति थी ना उसकी, जहाँ वो काम करता था, उसने ये जो अपना केस है वो कोर्ट के अंदर डाल दिया। मतलब कि उन्होंने केस कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर कि भाई आदमी तो मर रहा है और वो लोग एडमिट ही नहीं कर रहे हैं।
जब फैसिलिटी नहीं है तो डॉक्टर को इतने तनख्वाह, इतनी सैलरी क्यों दी जा रही है, किस बात की दी जा रही है? आदमी मर जाएगा उसके बाद एडमिट करोगे क्या? ठीक है, तो उन्होंने केस कर दिया। अभी द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, अभी देखो ये नेक्स्ट स्टोरी आ गई। तुम्हारी बुक बड़ी अच्छी है, स्टोरीज पे स्टोरीज देती है, फट समझ में आ जाता है चीज़ें। अभी तुम्हें इससे क्या समझ में आया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है, दोनों में कंडीशंस। 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल घूमने के बाद में 8 ने मना कर दिया एडमिट करने से। उसके बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पे उसको एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उसका इलाज होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्टोरी क्या है। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, अमन और रंजन है वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, जो रंजन है बहुत ही अच्छी परिवार से आया है। अच्छे परिवार का यहाँ पे मतलब है वो पैसे वाली फैमिली है। अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, और अमन के जो पेरेंट्स हैं उनको बेसिक खाना खाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वो दोनों दोस्त हैं, अब देखो वो दोनों क्या बातें करते हैं। हाय अमन, तुम लोग के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से तुम लोग को दिख जाए। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक। अमन को बोलता है तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा। हाउ हैव यू बीन, अब तुम कैसे हो? फिर अमन क्या बोलता है, आई हैड वायरल फीवर, मुझे वायरल बुखार हो गया था। एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर रंजन क्या बोलता है, ओह मी टू, मैं भी। आई जस्ट गोट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं भी जस्ट अभी सोमवार से स्कूल वापस जाने लगा हूँ, मैं भी बीमार पड़ा था। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, मेरे जो पिताजी हैं वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल के अंदर। जो अमीर वाला लड़का है ना वो बोल रहा है, मुझे लेके गए और नया हॉस्पिटल खुला है ना किंग्स वे, वहाँ पे। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, लो बोलो, एक तो ये बीमार था और उसको हॉस्पिटल जाना भी एक्साइटिंग लग रहा था। ठीक है, तो वो बताता है, बेचारे वो गरीब है ना अमन को, उसको बताता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइट था। अभी वो एक्सप्लेनेशन देता है, जो हमारा हॉस्पिटल है ना उसका एक्सप्लेनेशन देता है रंजन अमन को। रंजन क्या बोलता है, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, जो बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की बहुत ही पॉश थी। एंड आई थॉट इट वाज ए 5 स्टार होटल, जो ये हमारा होटल है वो 5 स्टार होटल था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वाज ए 5 स्टार होटल, कि जो जिस हॉस्पिटल में वो गया था वो हॉस्पिटल बहुत ही पॉश था, एक ऐसे लग रहा था जैसे कि वो 5 स्टार होटल है। बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल, वो इसलिए था क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ से पूरा भरा पड़ा हुआ था। डैडी हैड टू पे Rs 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ, जो हमारे पिताजी थे, जो मेरे फादर थे, उनको 500 रुपये तो वो रिसेप्शन काउंटर में जैसे ही घुसते ही ना, हमारे कभी भी जाओगे ना तुम लोग हॉस्पिटल में तो देखना, तुम लोग जाओगे जैसे ही सीधे डायरेक्टली तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे, वो लोग पहले आप लोगों को रिसेप्शन के पास में भेजेंगे। वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठा रहता है या बैठी रहती है, वहाँ पे जाके आपको रसीद कटवानी पड़ती है, वो आपको एक रिसिप्ट देते हैं या टोकन देते हैं, उस पर नंबर लिखा रहता है, उस नंबर पे टाइमिंग लिखा रहता है, उस टाइम पे आप डॉक्टर को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे उसके 500 रुपये लग गए थे सिर्फ वो काम करवाने के लिए। तो वही बता रहा है वो, डैडी हैड टू पे Rs 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर से मिलने से पहले ही उसके 500 रुपये वहाँ पे उन्होंने ले लिए। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा गाना चल रहा था। एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, और वहाँ पे सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही चमकदार था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, जो डॉक्टर थे उन्होंने, फिर वो डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर उसको अलग अलग टेस्ट करवाने के लिए बोलता है कि ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट कराओ, ये करवाओ, वो करवाओ, एक्सरे करवाओ। बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। जो वहाँ पे मैम थी जिन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया था, वो
ब्लड टेस्ट करते समय उन्होंने मुझे बहुत सारे चुटकुले सुनाए, बहुत ज़्यादा जोक सुनाए, ताकि मैं जो मेरा दर्द उस समय मुझे होना चाहिए था वो कम हो। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, जो मैंने टेस्ट करवा लिया उसके बाद में जब टेस्ट का रिजल्ट आया, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, और हम वापस डॉक्टर से मिलने के लिए गए। ही लुक्ड थ्रू दैम, उन्होंने जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने उन टेस्ट को देखा, एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, और उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, और मुझे सिर्फ एक वायरल बुखार हुआ है। ही प्रिस्क्राइब्ड लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स एंड रेस्ट, और उन्होंने ये मुझे एडवाइस किया कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है और रेस्ट करना है। एंड हैव यू हियर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी? ये एग्जाम्पल है कि जब वो ब्लड टेस्ट करवा रहे थे तो वो ऐसे ऐसे बातें मुझसे वो मैम कर रही थी ताकि मुझे दर्द ना हो। एंड सो यंग मैन, दिस pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime, that's for the body ache, this one is syrup, don't worry it's tasty। ये जो जब वो दवाई लेने जाते हैं, जब वो मेडिकल के ऊपर, उस हॉस्पिटल की एक मेडिकल होती है, वो मेडिकल के ऊपर जब दवाई लेने जाते हैं तब वो जाके वो मेडिकल वाला उनसे ऐसी बातें करता है कि ये जो नीली वाली है ये आपको 3 बार लेनी है, ये जो लाल वाली टेबलेट है ये आपको दिन में 2 बार लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, या आपको सिर्फ सोते टाइम पीनी है, और ये आपकी दवाई है वो। उन्होंने मतलब पूरी डिटेल के अंदर पूरी जानकारी देने के बाद में उनको पूरी लिख के उनको बताया कि ऐसी ऐसी टेबलेट है और इस तरीके से लेनी है। फिर लास्ट में थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, वो डॉक्टर को बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर, और मैं अभी से अच्छा फील करने लग गया हूँ। तो ये उसके साथ में एक हॉस्पिटल की पूरी जर्नी है कि हॉस्पिटल में उसके साथ में, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ में क्या क्या हुआ। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू? अब जो निरंजन है वो अमन को वापस पूछता है कि ये तो मेरे साथ हुआ, अब तू बता कि तेरे साथ में क्या क्या हुआ। फिर वो बेचारा अमन क्या बोलता है, वो तो मतलब थोड़ी गरीब फैमिली से था, तो वो तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा नहीं सकता, इसलिए वो क्या बताता है, देखो, इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल, ये जैसा तेरा तुम्हारा अच्छा था वैसा मेरा अच्छा नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वांट टू टेक मी, सबसे पहले तो जो मेरे पिताजी हैं, मेरे अब्बा हैं, वो मुझे कहीं ले जाना ही नहीं चाहते थे। बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और हमने फाइनली हम गए और हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, सरकारी अस्पताल में हम लोग पहुँचे। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्वी, पहले तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। एट द ओपीडी काउंटर, जो वहाँ पे ओपीडी काउंटर होता है, जो स्टार्टिंग का काउंटर होता है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, क्योंकि बुखार हो रखी थी, जाहिर सी बात है खड़ा रहना पड़ता है लाइन में, तो बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहा था। दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, और मुझे हमेशा मेरे जो पिताजी हैं ना, उनके ऊपर ऐसे लीन होते हैं ना हम लोग, कोई खड़ा रहता है तो उनका सहारा लेके हम ऐसे सो जाते हैं या फिर उनके सहारा लेके खड़े रहते हैं, तो वैसे मैं खड़ा हुआ था। देखो पिक्चर भी शोन की हुई है, ये देखो, ये अमन सोया हुआ अपने पापा के बाजू के अंदर। व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्वी, फिर हम लोग गए और हमने दूसरी लंबी लाइन लगाई ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, और लोग भीड़ की वजह से इधर उधर कमरे के अंदर घूम रहे थे। वी गोट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, हमें 3 दिन बाद में टेस्ट रिजल्ट मिला। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और वापस हॉस्पिटल पहुँचे। देयर वाज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, उस दिन वो दूसरा डॉक्टर था वहाँ पे। शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, मुझे जल्दी से जल्दी ओपीडी बताओ और रिजल्ट बताओ और जल्दी से जल्दी चेक करवाओ। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बॉट ऑफ वायरल फीवर, वो मुझे बोलता है डॉक्टर कि
इसको वायरल फीवर है, नथिंग टू वरी, चिंता की बात नहीं है। ऑल ही नीड्स टू दी दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, उसको एक मेडिसिन लेनी है और ये इसका बुखार रिड्यूस या कम कर देगी। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा हॉस्पिटल अच्छा था, बट दे गेव मी टू मैनी मेडिसिन्स, लेकिन वो उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी। एंड द होल थिंग कॉस्ट मोर देन 3500, और मुझे 3500 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गए। ये उसको निरंजन बोलता है। अब अमन क्या बोलता है, दैट मच, इतना ज़्यादा, माई ट्रीटमेंट कॉस्ट जस्ट Rs 150, और मेरे जो ट्रीटमेंट में पैसे लगे मुझे 150 लगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये दो दोस्तों की कहानी थी। वो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एक प्राइवेट में जाता है, एक गवर्नमेंट में जाता है। तो आप लोग के चैप्टर के अंदर ये कहानी क्यों दी गई है, ये आप लोग के चैप्टर में इसलिए दी गई है ताकि आप लोग को एक डिफरेंस पता चले कि प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल, इन दोनों में, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उन दोनों में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, इन दोनों के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं या कोई अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, नर्सेज होते हैं, उनके बात करने का वेज क्या होते हैं, उनके क्या तरीके होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट कैसा होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल का गवर्नमेंट कैसा होता है। ठीक है, अब देखो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, अब इससे क्या कंक्लूजन निकला है वो हम पढ़ेंगे। फ्रॉम द अबव स्टोरी, ऊपर दी गई कहानी के बेसिस पे, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन 2 कैटेगरीज। हम लोग रफली 2 कैटेगरीज के अंदर हॉस्पिटल्स को डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पढ़ेंगे हम क्या होते हैं। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उनको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, और वो इस तरह से सिचुएटेड रहते हैं, इस तरह से वो लिंक किए जाते हैं कि वो रूरल और अर्बन दोनों एरिया को कनेक्ट कर सके। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो सभी तरह के ट्रीटमेंट वहाँ पे कर सके। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, छोटे से छोटे बीमारी से लेकर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, यहाँ से लेकर बड़े से बड़े ऑपरेशन होते हैं ना, कैंसर, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ, वहाँ तक इलाज वो लोग कर सकें। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। गाँव के अंदर भी हॉस्पिटल्स होते हैं, तुम्हारे गांव में भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक नर्स होता है या फिर कंपाउंडर होता है, और उसके साथ में एक डॉक्टर आता है, वो भी सीजनल बैठता है, हफ्ते में 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, इस तरह से। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, और वो जो गांव में होते हैं ना, वो एक कॉमन इलनेस जो मतलब साधारण जो बीमारियां होती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, कमर दर्द, ऐसे ऐसे जो नॉर्मल जो तुम्हें बीमारियां होती हैं ना, चोट लग गई, पट्टी करवानी है, तो उसके लिए तुम्हें दूर ना जाना पड़े, इसके लिए वो ट्रीटमेंट तुम्हारे यहाँ पे हो जाते हैं। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, और वो लोग काम करते हैं किसी न किसी डॉक्टर के अंडर में। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन ए रूरल एरिया, और ऐसे जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत सारे विलेजेस को कनेक्ट करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, यानी कि जो हमारे हर एरिया का जो एक ज़िला होता है, उस ज़िला में जो हॉस्पिटल होता है उसको वो उस ज़िले के जितने भी गांव आते हैं ना, कनेक्ट करता है उसको। दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, और वो जितने भी बाकी जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर रहते हैं ना, उनको सुपरवाइज करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े सिटीज़ में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स रहते हैं। सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन, ऐसे जहाँ पे अमन गया था। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वंस इन हकीम शेख्स स्टोरी, और ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जहाँ पे हमने इससे पहले जो स्टोरी पढ़ी थी हकीम शेख की, जिसको 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है पर कोई भी एडमिट नहीं करता है, वैसे हॉस्पिटल्स भी मिलते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to government as taxes.
Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। अभी देखो, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो हमारे जितने भी लोग होते हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हो, वो सबके इलाज के लिए होते हैं। वहाँ पे कोई भी जा सकता है और मिनिमल कॉस्ट के लिए होता है कि वहाँ पे जाने पर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और आपके छोटे से लेकर बड़ी बीमारियाँ तक हो सकती। ये मेन फंक्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। विद द पार्टिसिपेशन of people, otherwise it is not effective. For example, when taking up a campaign to see the mosquito do not breed in water coolers, rooftops, etc., this has to be done for all houses in the area. और जैसे कि ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ये बाकी के इनकी जो संस्थाएं होती है, ये दूसरे काम भी करते हैं। जैसे कि अभी जैसे हमारे घर में जो कूलर होते हैं, वो उसका पानी हम लोग बहुत दिनों तक साफ़ नहीं करते हैं, वही पड़ा रहता है, उससे मच्छर होते हैं, मच्छरों से मलेरिया होते हैं, डेंगू होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ बताएगा कौन? ये जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ये पूरे जनता के अंदर, हमारे पूरे लोगों के अंदर कैंप करते हैं। कैंप लगा के हमें पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि तुम्हें ऐसे ये सब साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। एक इंग्लिश में कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब यही है कि आप इलाज करवाने से बेटर है कि आप उस बीमारी को होने ही मत दो। वो सिस्टम भी ये लोग का काम होता है। ये भी जो हमारे जो गवर्नमेंट जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका काम भी उनके फंक्शन के अंदर आता है। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख की कहानी को दोबारा याद करो। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? आप लोग जानना नहीं चाहोगे जब उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था तो कोर्ट ने क्या बोला? According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. हमारा जो संविधान है उसके अंदर हमें राइट मिला हुआ है कि गवर्नमेंट का काम ही यही है कि जनता के जो वेलफेयर है, जनता की जो हेल्थ है, उसके बारे में ध्यान उनको रखना पड़ेगा। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट को हमें जो राइट मिला है लाइफ, सेफ गार्ड लाइफ का, वो उसका ध्यान भी कौन रखेगा? उसका ध्यान भी गवर्नमेंट रखेगी। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्ट दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। इफ कोर्ट ने ये बोला कि ये तो मान लो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया और बच गया, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं जा पाता, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो तो मर जाता। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। अगर वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट मतलब एक आदमी की जान ही नहीं बचा सकता, उसको एडमिट ही नहीं कर रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा है उसकी जान बचाने की, तो उसके हॉस्पिटल के होने का फ़ायदा क्या है? द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। कोर्ट ने यह बोला कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का राइट, ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है उसकी कि ये जितने भी जो आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं, उनको एडमिट करना ही पड़ेगा। Hospital and medical stall must fulfill their duty of providing the necessary treatment. हकीम शेख was denied treatment at various government. हकीम शेख 8 हॉस्पिटल के अंदर घुमा था, लेकिन उसको कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। Therefore the court asked the state government to give him the money. इसलिए कोर्ट ने ये बोला कि उसको पैसे दिए जाए, दैट ही had spent on his treatment. जो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने पैसे उसको ठीक कराने के लिए लगे थे, वो सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट उसको देगी। तो ये हमारा जो केस हुआ था। In the next class we will focus on the private health facilities. We will see in the next class we will see the private health facility, what is meant by private health facilities and what are the facilities private hospitals are providing in our country, and what are the doctors what is the difference between the doctors of private hospital and doctors of government hospitals. And have a nice day and all the best for your study, and take care of corona. Stay safe, stay home. Goodbye, good day.